आज हम एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के हेल्प से हमें ये पता करना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2 देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2 then pair of linear equation are inconsistent and a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 then pair of linear equation is consistent। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3x plus 2y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 7 और 3x plus 2y minus 5 is equal to 0, 2x minus 3y minus 7 is equal to 0। ये हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गए। सबसे पहले हम a1, b1, c1, a2, b2 और c2 फाइंड करते हैं। a1 is equal to 3, b1 is equal to 2, c1 is equal to minus 5, a2 is equal to 2, b2 is equal to minus 3, c2 is equal to minus 7। a1 upon a2 is equal to 3 upon 2, b1 upon b2 is equal to 2 upon minus 3, c1 upon c2 is equal to minus 5 upon 7 is equal to minus 5 upon minus 7 is equal to 5 upon 7। आप देख सकते हैं कि ये तीनों ही रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, not equal to 5 upon c1 upon c2। इसलिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 2x minus 3y is equal to 8, 4x minus 6y is equal to 9 और 2x minus 3y minus 8 is equal to 0, 4x minus 6y minus 9 is equal to 0। ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे a1 is equal to 2, b1 is equal to minus 3, c1 is equal to minus 8, a2 is equal to 4, b2 is equal to minus 6, c2 is equal to minus 9, a1 upon a2 is equal to 2 upon 4 is equal to 1 upon 2, b1 upon b2 is equal to minus 3, 1 minus 6 is equal to 1 upon 2, c1 upon c2 is equal to minus 8 upon minus 9 is equal to 8 upon 9। यहाँ पे a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, therefore this pair of linear equation is inconsistent।
क्वेश्चन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3/2x plus 5/3y is equal to 7 और 3/2x plus 5/3y minus 7 is equal to 0 and second equation 9x minus 10y is equal to 14 और 9x minus 10y minus 14 is equal to 0। यहाँ पे a1 3/2, b1 5/3 and c1 minus 7 है, a2 9, b2 minus 10 and c2 minus 14 है। यहाँ हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो निकालते हैं। a1 a2 is equal to 1/6 but b1 b2 is equal to 1/-6 and c1 upon c2 is equal to 1/2। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मीन्स a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, so pair of linear equation is consistent। In fourth question, pair of linear equations are 5x minus 3y minus 11 is equal to 0, minus 10x plus 6y plus 22 is equal to 0। फिर से यहाँ पे हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का रेशियो निकालते हैं। यहाँ पे तीनों ही रेशियो सेम है, एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगे। क्वेश्चन 5 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 4/3x plus 2y is equal to 8 और 4/3x plus 2y minus 8 is equal to 0 है। सेकेंड इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 12 और 2x plus 3y minus 12 is equal to 0 है। यहाँ भी हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड करके a1 upon a2 b1 upon b2 और c1 upon c2 फाइंड करते हैं और देखते हैं कि ये तीनों रेशियो ही एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका हम ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑब्टेन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशंस are x plus y is equal to 5, 2x plus 2y is equal to 10 और x plus 5 minus 5 equal to 0, 2x plus 2y minus 10 is equal to 0। इसके बाद हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड करेंगे। फिर a1 a2 का रेशियो b1 b2 का रेशियो c1 c2 का रेशियो फाइंड करेंगे। तो देखते हैं a1 a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, इसलिए ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसके लिए दोनों इक्वेशंस के x और y के वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करके y के वैल्यू से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू ये आता है और सेकंड का ये आता है। अब दोनों वैल्यू के हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फाइंड करेंगे कि x और y का एक्चुअल वैल्यू क्या है। From this graph, it is clear that given pair of linear equation are coincident, so it's have infinite number of solution। क्वेश्चन नंबर 2 में लीनियर इक्वेशन x minus y is equal to 8 and 3x minus 3y is equal to 16 है और x minus y minus 8 is equal to 0 और 3x minus 3y minus 16 is equal to 0। यहाँ पे a1 is equal to 1, b1 is equal to -1, c1 is equal to -8, a2 is equal to 3, b2 is equal to -3, c2 is equal to -16। अब हम a1 और a2 का रेशियो, b1 और b2 का रेशियो और c1 और c2 का रेशियो निकालते हैं। तो देखते हैं कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। So pair of linear equations is inconsistent, so it have no solution, so we will not draw the graph। Now question 3, pair of linear equations are
2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 को फाइंड करके a1 a2 का रेशियो, b1 b2 का रेशियो और c1 c2 का रेशियो निकालते हैं और देखते हैं कि ये सब तीनों आपस में इक्वल नहीं है। सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, सो वी विल ड्रॉ द ग्राफ। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वही प्रोसीजर यूज करेंगे। दोनों इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू निकालेंगे और फिर दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ से ये क्लियर है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक पॉइंट 2 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए 2 और 2 ही x और y का सॉल्यूशन होगा। फोर्थ क्वेश्चन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू -2, c1 इज इक्वल टू -2, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -4, c2 इज इक्वल टू -5। So ratio of a1 a2 is equal to 1/2, ratio of b1 b2 is equal to 1/2 and ratio of c1 c2 is equal to 2/5। यहाँ हम देख सकते हैं कि a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। So given pair of linear equation is inconsistent, so we will not draw graph। In question number 5, half of the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ ऑफ पेरीमीटर 36 मीटर दिया हुआ है और इसका लेंथ इसके विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो हम इसका दो लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे और ग्राफ के हेल्प से दोनों डायमेंशन फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू x, width of garden is equal to y। Here x is equal to y plus 4, therefore x minus y is equal to 4। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब हाफ ऑफ पेरीमीटर मीन्स x plus y is equal to 36 because perimeter is equal to 2x plus y, so x plus y is equal to 36। ये सेकेंड लीनियर इक्वेशन है। अब हम इन दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ फॉर्म करेंगे। x minus y is equal to 4, therefore x is equal to 4 plus y। y is equal to 0, therefore x is equal to 4 plus 0, therefore x is equal to 4। y is equal to -4, therefore x is equal to y plus -4, therefore x is equal to 0।
इक्वल टू 16, therefore x इक्वल टू 4 प्लस 16, therefore x इक्वल टू 20. Second equation, x plus y is equal to 36, therefore x is equal to 36 minus y. Y is equal to 12, x is equal to 36 minus 12, x is equal to 24. Y is equal to 24, therefore x is equal to 36 minus 24, therefore x is equal to 12. Y is equal to 16, therefore x is equal to 36 minus 16, therefore x is equal to 20. अब हमें दोनों ही लीनियर इक्वेशन के x और y के वैल्यू मिल गए हैं. अब इन दोनों के हेल्प से हम दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ. फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में y का वैल्यू 0, -4 और 16 रखते हैं तो x का वैल्यू 4, 0 और 20 आता है. और सेकेंड लीनियर इक्वेशन में y का वैल्यू 12, 24 और 16 रखते हैं तो x का वैल्यू 24, 12 और 20 आता है. अब इन दोनों वैल्यू की हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ग्राफ से ये क्लियर है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पॉइंट 20 और 16 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इसलिए लेंथ ऑफ गार्डन x इज इक्वल टू 20 एंड विड्थ ऑफ गार्डन y इज इक्वल टू 16 मीटर. क्वेश्चन नंबर 6 में एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. इसका हमें पेयर लीनियर इक्वेशन बनाना है और 3 टाइप्स के पेयर बनाने हैं. पेयर लीनियर इक्वेशन इस तरह से बनाने हैं कि फर्स्ट में जब हम ग्राफ बनाएं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस ग्राफ बने. सेकेंड पेयर लीनियर इक्वेशन ऐसा बनाना है कि जब ग्राफ ड्रॉ करें तो लाइंस पैरेलल आए. और थर्ड हमें ऐसा पेयर लीनियर इक्वेशन बनाना है कि ग्राफ कोइंसिडेंस लाइंस हो. हमें पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस जब फॉर्म होते हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है. तब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है. इसी के बेस पे अलग अलग कोफिशिएंट रखते हुए हम फर्स्ट इक्वेशन का पेयर लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे. दोनों ही प्लेस पे a और b दोनों ही प्लेस पे हमें कोफिशिएंट चेंज कर देना है. हमने 3x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 ऐसा लीनियर इक्वेशन फॉर्म किया. हम कोई दूसरा वैल्यू रख करके भी दूसरा लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं. अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. इसके लिए दोनों लीनियर इक्वेशन में y का डिफरेंट वैल्यू पुट करके x का वैल्यू निकालेंगे. आप देख सकते हो यहाँ पे हमने दोनों ग्राफ का x और y का वैल्यू रखा है. अब हम दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे.
अब हमें गिवन लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0 का पेयर लीनियर इक्वेशन इस तरह से बनाना है कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ पैरेलल लाइंस हो। तो पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन है a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए जो हम दूसरा इक्वेशन फॉर्म करते हैं वो 2x + 3y - 5 = 0 ये होता है। अब हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन हो गए, इनका हम y और x का वैल्यू निकाल करके प्लॉटिंग करके और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होता है। थर्ड कंडीशन में गिवन लीनियर इक्वेशन क्या पेयर लीनियर इक्वेशन इस तरह से बनाना है कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कोइंसिडेंट लाइंस हो। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए जो कंडीशन होता है वो a/a2 = b/b2 = c/c2 होता है। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो 6x + 9y - 24 = 0 ये बनता है। अब हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन फॉर्म हो गया है। अब इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो इस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दिए हुए हैं x - 5 + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0। इन दोनों इक्वेशन के हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम ये देखेंगे कि दोनों कोऑर्डिनेट पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। उस ट्रायंगल का एरिया क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले y का वैल्यू पुट करके दोनों इक्वेशन में हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन के लिए x = -1 then y = 0, x = 2 then y = 3, x = 0 then y = 1 एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए x = 4, 2 and 0 and y = 0, 3 और 6। अब इन दोनों को ग्राफ पेपर पे प्लॉटिंग करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जब हम ग्राफ का फॉर्मेशन करते हैं तो देखते हैं कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। उस ट्रायंगल का नाम हम ABD देते हैं। इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब हम देखते हैं कि कैसे इस ट्रायंगल का एरिया फाउंड करते हैं। हमें सबसे पहले ग्राफ में ट्रायंगल ABD के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। मीन्स A, B और D ग्राफ पे किस पॉइंट पे प्लॉट हो रहे हैं। आप देख सकते हो कि पॉइंट A का प्लॉटिंग -1 और 0 है, B का 2 और 3 है और D का 4 और 0 है। अब किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए उसका बेस और लेंथ मालूम होना ज़रूरी है। इसीलिए ग्राफ के हेल्प से हम उसका बेस AD फाइंड करेंगे। तो देख रहे हैं कि AD = AO + OD है, मीन्स 1 + 4 है, 1 + 4 = 5 यूनिट और लेंथ BA = 3 यूनिट्स है। अब हम ट्रायंगल ABD का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD = हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई लेंथ = हाफ मल्टीप्लाई AD मल्टीप्लाई BA = हाफ मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 = 15/2 = 7.5। ये 7.5 यूनिट इस ट्रायंगल का एरिया।